हेलो एवरीवन, मेरा नाम शलीना है एंड आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीट बडी में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको अपना डेली 24 आवर एफिशिएंटली यूज़ करना है तो यू शुड हैव अ टाइम टेबल जहां आप अपने हर एक्टिविटी को एक फिक्स टाइम देंगे और एक फिक्स ड्यूरेशन अलॉट करेंगे और जो काम जब करना है उसी टाइम पे आप करेंगे एक एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। अगर आप नीट 2021 के लिए अभी से अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, when you have a lot of time in your hands, then you would be very easily able to complete the entire portion of 11th and 12th, and you will have enough time for your revisions as well. So that is what we are going to do in this video. We will provide you with an example timetable कि आपका timetable कैसा होना चाहिए for NEET 2021, and we will also provide you with the pointers of what all points you should keep in your mind to make the most efficient timetable so that you make use of your time and energy efficiently. So without wasting much time, let's get started with today's video on timetable for NEET 2021. And if you are new out there, do not forget to go and subscribe to this channel. Before providing you with the timetable, let us discuss few of the important points that you should keep in your mind when preparing a timetable for yourself. The first thing you should know is your strength and weaknesses. कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रेंथ हैं एंड कौन से सब्जेक्ट्स में आप वीक हो, किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है एंड कौन से सब्जेक्ट को आपको कब पढ़ना है, ये सब आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे ही डिपेंड करता है। जब आप एकदम फ्रेश होते हो, आपको पढ़ने का जब बेस्ट टाइम लगता है, उस टाइम पे आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स कवर करने चाहिए। एंड जब आप थोड़े बोर हो जाते हो, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कवर करने चाहिए। वो सब्जेक्ट्स जो आपको मजा आता है पढ़ने में, वो आपको तब कवर करने चाहिए। So the subjects that are your strength you need to cover when you are not feeling like studying, and the subjects that you are weak in you need to cover when you have fresh mind and you can study a lot. Alright, so you need to know your strength and weaknesses before dividing your time. The second thing that you need to know is that you should not be very strict about your time, and you need to take breaks in between. There should be adequate breaks in between in your times. So one of the major reason why people are not able to follow their timetable is because when they make the timetable, they think कि हम इतना टाइम तो पढ़ेंगे ही, and they make their timetable very strict accordingly. So say आप कहते हो कि आप 8 घंटे पढ़ोगे, तो आप स्ट्रेच में 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो. You need to take breaks. You need to take breaks, go out for a walk, खाना खाइए, पानी पीजिए. ऐसे बीच बीच में ब्रेक्स होने बहुत ज़रूरी है so that आपका टाइम टेबल एफिशिएंट बने. होता ये है कि अगर आप कहते हो कि आप 3 घंटे पढ़ोगे, 3 घंटे से आप कह रहे हो फिजिक्स पढ़ोगे, एंड 3 घंटे आप अगर बैठ के लगातार पढ़ने बैठोगे तो इट विल बिकम वेरी मोनोटोनस एंड यू विल रीच योर सैचुरेशन वेरी फास्ट, एंड उस 3 घंटे के बाद फिर आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे. सो व्हाट यू नीड इज उस 3 घंटे में एटलीस्ट 15-15 मिनट्स का ब्रेक रखिए एवरी 40 to 45 मिनट्स में. थोड़े थोड़े स्नैक्स ब्रेक्स लेते रहिए सो दैट आप एकदम स्ट्रेच में पढ़ने की जरूरत ना पड़े. आप यू नीड टू बी वेरी लीनियंट अबाउट योर टाइम. Not very lenient, but you need to be lenient. You can't say कि हम एक stretch में 4-5 घंटे पढ़ लेंगे. That is not possible humanly. Alright? And the fourth thing that you need to keep in mind is you need to follow your timetable for at least 21 days. So आप कुछ भी नया schedule अगर बनाते हो तो वो follow करना difficult होता है. Starting का at least जो initial 1 week होता है, that is the most difficult time. जब आप वो स्केड्यूल फॉलो कर ही नहीं पाते हो. ऐसा मत करना कि आप स्टार्ट कर रहे हो, हाँ हम ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे, एंड देन 2-4 दिन के बाद आप छोड़ देते हो दैट नो वी आर नॉट एबल टू फॉलो दिस टाइम टेबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट करके. यू नीड टू एटलीस्ट फॉलो थ्रू फॉर 21 डेज. उसके बाद आपको समझ आता है कि वो टाइम टेबल आपके लिए सही था या नहीं. एंड अगर तब भी आपको लगता है कि आप वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, देन यू नीड टू टेक नोट्स ऑफ व्हाट वर द प्रॉब्लम्स.
Okay, all right, in your timetable, what were the problems that you had faced in the last 21 days, and then make a new one for yourself. So at least 21 days you need to follow, and with the new timetable also, you need to follow at least 21 days. So that is the crux of it, that at least 21 days you need to follow. And ऐसे ही आप 21 डेज करके एक बेस्ट टाइम टेबल अपना निकालिए जो आपको आपके लिए काम करता हो, एंड देन फॉलो दैट फॉर योर एंटायर नीट 2021 प्रिपरेशन. Okay. In this video, we will be providing you with an example of timetable. So जरूरी नहीं है कि आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना है. आप अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, वेदर यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, वेदर यू आर अ नाइट पर्सन, आपसे सुबह ज्यादा पढ़ाई होती है, रात को ज्यादा पढ़ाई होती है, यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल विच यू थिंक इज बेस्ट फॉर योर सेल्फ. ऑलराइट, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए. हम लोगों ने आपको बस एक एग्जाम्पल दिया है. सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका डे का स्प्लिट कैसा होना चाहिए, आपके 24 आवर्स कैसे डिवाइडेड होने चाहिए. So first is, the most important thing is 7 hours of sleep. So आपको minimum 7 hours of sleep जरूरी है. Alright, this will help you be in your best form throughout the day and will help you efficiently follow your timetable. So 7 hours का sleep is very important. After that, we have given 3 hours for your daily activities. नहाना, धोना, खाना, पीना, those are in this 3 hours. तो उसके बाद हमारे बचे 14 आवर्स. सो इन 14 आवर्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, 11.5 आवर्स एंड 2.5 आवर्स. ओके, सो ये हमारे हैं 11.5 आवर्स आपकी प्रैक्टिस के लिए, पढ़ाई के लिए, एंड देन 2.5 आवर्स आपके पेपर्स करने के लिए, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके लिए. सो अभी जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हो, स्टार्टिंग फेज में हो, तो आप पूरा 14 आवर्स अपने सिलेबस कंप्लीट करने में ध्यान दे सकते हैं. बट एट द लेटर स्टेज से दिसंबर के बाद, जब आपके लास्ट 4-5 मंथ्स बचे होंगे, तो आपको अपने सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स में भी ध्यान देना होगा. डेली एक सैम्पल पेपर एटलीस्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, जो आपकी स्पीड को ट्रेन करेगा, आपको पता चलेगा पैटर्न कैसा है, आपको कैसे सॉल्व करना है, सब समझ जाएगा उस हिसाब से. सो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आप अपने मेजर टॉपिक्स कंप्लीट कर लोगे, तो ये डिवीजन जरूर याद रखिएगा कि अपने दिन का एटलीस्ट 2.5 आवर्स आपको देना ही है जरूरी प्रैक्टिसिंग के लिए, पेपर्स प्रैक्टिस करने के लिए. सो आपके सब्जेक्ट वाइज टाइम स्प्लिट कुछ ऐसा रहेगा. Zoology 2 hours, Botany 2 hours, Chemistry 3.5 hours, Physics 4 hours and Sample Papers 2.5 hours. So ये जो 2.5 hours Sample Papers का है, ये आपको दिसंबर तक काम में नहीं आएगा. दिसंबर के बाद आपको Sample Papers एकदम फॉलो करना है कि डेली आप एक सैम्पल पेपर कर रहे हो. उससे पहले आप 2.5 आवर्स सेपरेट आउट कर सकते हो टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव डन इन योर 11.5 आवर्स. अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ रिवाइज करना है, वो आप अपने इस 2.5 आवर्स में कर सकते हो, जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक आप अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू नहीं कर रहे हो, तब तक के लिए आप इन 2.5 आवर्स में अपना रिवीजन कर सकते हो कि आपने अपने 11.5 आवर्स तक क्या क्या पढ़ाई करी थी, आपको कितना याद है, कितना आपको कल करना चाहिए, कितना आपको अभी फिर से एक बार देख लेना चाहिए, वो सब चीजें आप इसमें कर सकते हो. Okay, so this is the example timetable that we had created. So ये timetable हम लोगों ने एक morning person के हिसाब से बनाया हुआ है जिसका physics week है. Alright, so वो इंसान उठेगा 5 बजे, क्योंकि उसका मॉर्निंग टाइम है तो वो 5 बजे उठ जाएगा, एंड 5 to 9 वो फिजिक्स पढ़ रहा है. आफ्टर दैट 9 to 10 he'll freshen up and have breakfast. एक आवर का यहाँ पे ब्रेक मिला, and then 10 to 12 he'll study biology का zoology वाला part. Alright, उसके बाद he'll take a break, and then 12:30 to 2 he'll study chemistry. Then again a break, and then botany, and then again a break, and then chemistry. So you see chemistry उसने पूरा एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ा है, ब्रेक किया है उसने. फर्स्ट उसने लंच से पहले पढ़ा है, एंड देन फिर एक दूसरा सब्जेक्ट लिया, एंड देन फिर उसने केमिस्ट्री लिया, एंड देन
7 to 8 हम लोगों ने बायोलॉजी रिवाइज किया, हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था वो रिवाइज किया, एंड डिनर के बाद फिर सैम्पल पेपर्स किए फॉर 2.5 आवर्स। सो ये सैम्पल पेपर में आप अपने पूरे दिन का रिविजन कर सकते हो, अगले दिन आपको क्या पढ़ना है वो डिसाइड कर सकते हो, एंड आपका जब दिसंबर के बाद का टाइम आएगा तो आप सैम्पल पेपर्स एकदम बैठ के 2.5 आवर्स के लिए सॉल्व कर सकते हो, राइट? Alright guys, that was all for today's video. हम लोगों ने आज आप लोगों को एक एग्जाम्पल टाइम टेबल दिखाया है, but you don't need to follow that timetable as is. You should make your own timetable according to your own strength and weaknesses, and कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट रहता है पढ़ने के लिए. But टाइम टेबल जरूर बनाइए so that you are able to use your time efficiently and you are able to prepare your best for the NEET 2021. आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कोई भी छोटी मोटी हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा सो दैट हम लोग जब भी नया वीडियो डालें तो आप लोग को तुरंत पता चल जाए. ओके गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. टेक केयर.